Very good morning, dear students. Before the start of the class, let us take a pledge to fight the deadly coronavirus. I, Harpreet Singh, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the COVID-19 appropriate behavior. To always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water, and together, by taking all these precautions, we will win this fight against COVID-19. Students, today in this AV, we will continue with our chapter number 8, the factors and the remainder theorems. And today we will learn how to factorize a given expression, a given polynomial of degree 2 or greater than 2, or here we will take the examples of degree 3. So let us have the first question from exercise 8b. In the first part of first question, he said, show that x minus 2 is a factor of x cube minus 2x square minus 9x plus 18. Hence, factorize the expression x cube minus 2x square minus 9x plus 18 completely. So for this, first of all, given expression, we will name this expression as fx. This is first question, first part from exercise 8b. So fx is x cube minus 2x square minus 9x plus 18. And let gx is x minus 2. In our previous APs, we learned how to prove that the x minus 2 is a factor of fx. For this, first we will put gx equal to 0. It means x minus 2 equal to 0. X is equal to 2. So therefore, f of 2, we will calculate f of 2. Agar ye 0 aayega, then it will be a factor. So 2 cube minus 2 into 2 square minus 9 into 2 plus 18. 2 cube is 8. It is 2 into 4 is again 8. 9 into 2 is 18. Minus 18 plus 18. So plus 8 minus 18 plus 18. It gets cancelled. So f of 2 is equal to 0. So therefore, by factor theorem, x minus 2 is a factor of fx. ये जो fx है वो fx का फैक्टर होगा. fx means the expression x cube minus 2x square minus 9x plus 18. Further he said, hence factorize fx equal to x cube minus 2x square minus 9x plus 18 completely. मीन्स हमें इसके बाकी के दो फैक्टर्स भी फाइंड आउट करने होंगे. देखो, दो फैक्टर मैंने क्यों बोला? क्योंकि x क्यूब जितनी पावर होती है मैक्सिमम उतने ही फैक्टर्स हो सकते हैं. ठीक है. सो फॉर दिस हम क्या करेंगे? डिवाइड fx by x minus 2 using long division method. तो it is x minus 2 x cube minus 2x square minus 9x plus 18. तो जो डिवीजन रूल होता है वो सबसे पहले हमें फर्स्ट टर्म इक्वल करनी है. तो आप क्या करोगे? x क्यूब ओवर x, डिविडेंड की फर्स्ट टर्म और डिवाइजर की फर्स्ट टर्म को डिवाइड करके देखोगे, इट कम्स आउट टू बी x स्क्वेयर. तो क्वेश्चन में पहला जो टर्म आएगी एक्सप्रेशन की वो x स्क्वेयर होगी. अब आप x स्क्वेयर को x माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. इट बिकम x स्क्वेयर इंटू एक्स इज एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वेयर. तो इट इज x क्यूब माइनस 2x स्क्वेयर. अब इनको कैंसिल कर दीजिए. फर्स्ट तो कैंसिल होगी ही होगी, और यहाँ पे फॉर्चुनेटली सेकंड भी कैंसिल हो रही है. इट मे और मे नॉट कैंसिल, लेकिन यहाँ पे कैंसिल होगी. अब बाकी का जो एक्सप्रेशन है उसको कैरी कर दीजिए आगे. अब जो यहाँ पे फर्स्ट टर्म है माइनस 9x और यहाँ पे फर्स्ट टर्म है, इनको डिवाइड करिए. x कैंसिल, माइनस 9 आ गया. तो ये क्वोशंट की दूसरी टर्म होगी. अब माइनस 9 से x माइनस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 9x प्लस 18. इट इज अगेन सेम. सब्ट्रैक्ट करना है, कैंसिल हो गया. तो देयरफॉर हम fx को लिख सकते हैं x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 9. अब हमें इसको कंप्लीटली फैक्टराइज करना है, मतलब जो सेकंड एक्सप्रेशन आया क्वाड्रेटिक उसके फैक्टर्स. अब यहाँ पे आप आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हो.
इट इज एक्स स्क्र माइनस 9 को लिख सकते हैं 3 स्क्र, तो इट इज एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3, बिकॉज ए स्क्र माइनस बी स्क्र हमारे पास होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी. तो दिस इज द कंप्लीट फैक्टराइजेशन ऑफ एफ एक्स. सो विच इज complete factorization of fx. So in this way we can factorize a cubic expression when one of the factor is given. लेकिन कई बारी क्या होता है, जैसे we will see the next question, question number 2. इसमें उसने हमें एक्सप्रेशन दिया और उसने बोला यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग कंप्लीटली. अब यहाँ पे जैसे पिछले केस में हमें एक फैक्टर दिया था, बट हियर वी आर नॉट प्रोवाइडेड विद द वन फैक्टर, तो यहाँ पे हमें फर्स्ट फैक्टर भी खुद लोकेट करना पड़ेगा. अब आइए समझते हैं कि हम इसको कैसे लोकेट करेंगे. तो लेट अस टेक द सेकेंड क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, एंड हमारे पास एक्सप्रेशन है एफ एक्स इज 3x³ प्लस 2x स्क्वेयर माइनस 9x प्लस माइनस 19x प्लस 6. अब इसमें जब हमने फर्स्ट फैक्टर लोकेट करना है तो इसकी जो भी कांस्टेंट टर्म होगी उसके हम पॉसिबल फैक्टर्स देखेंगे. पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 6, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 6 है. देखो एक तो 1 और -1 दोनों 6 के फैक्टर हैं. इसी तरह से +-2, +-3 और +-6. नंबर खुद और 1 तो फैक्टर्स होंगे ही होंगे, एंड अदर देन दीज भी कुछ फैक्टर हो सकते हैं, एंड उनको हम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यूज मिलेंगे. अब हम यहाँ पे चेकिंग शुरू करेंगे. पहले हम f ऑफ 1 देखेंगे कितना आता है. इट इज 3 इंटू 1³ प्लस 2 इंटू 1 स्क्वेयर माइनस 19 इंटू 1 प्लस 6. तो ये बना 3 प्लस 2 माइनस 19 प्लस 6. 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 6 11, 11 माइनस 19 माइनस 8. इट इज़ नॉट इक्वल टू 0. हम वहाँ तक जाएंगे जहाँ पे हमें फर्स्ट रिमाइंडर 0 मिले. फिर -1 पे चेक करते हैं. 3 इंटू -1³, 2 इंटू -1 स्क्वेयर माइनस 19 इंटू -1 प्लस 6. तो -1 का क्यूब -1 और ये बन जाएगा -3. -1 स्क्वेयर इज +1 प्लस 2 प्लस 19 प्लस 6. अब 19 प्लस 6 25 प्लस 2 27 -3 24. ये भी 0 नहीं आया. नाउ वी विल चेक ऑन 2. तो इट इज 3 इंटू 2³ 2 इंटू 2 स्क्वेयर माइनस 19 इंटू 2 प्लस 6. 2³ इज 8 इंटू 3 24. 2 स्क्वेयर इज 4 इंटू 2 8 माइनस 19 इंटू 2 38 प्लस 6. अब 32 24 प्लस 8 32 बन गया प्लस 6 38 माइनस 38. इट इज 0. सो देयरफॉर x माइनस 2, क्योंकि हमारे पास f ऑफ 2 आया ना, तो f ऑफ 2 अगर 0 है देन वी विल से x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ fx यूजिंग फैक्टर थ्योरम, बिकॉज फैक्टर थ्योरम सेज कि अगर f ऑफ a 0 होता है तो x का एक फैक्टर x माइनस a होगा. नाउ डिवाइड fx बाय x माइनस 2. सेम प्रोसीजर जैसे अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में करा. तो यहाँ पे हमारा x³ है 3x³, हमारा fx है 3x³ प्लस 2x स्क्वेयर माइनस 19x प्लस 6. अब फर्स्ट टर्म के लिए हम 3x³ को x से डिवाइड करेंगे और ये आएगा 3x स्क्वेयर. 3 एज इट इज पावर माइनस हो गई, तो 3x स्क्वेयर को x माइनस 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आएगा 3x³ माइनस 6x स्क्वेयर. 3x³ माइनस 6x स्क्वेयर सब्ट्रैक्ट कीजिए. इट इज 8x स्क्वेयर माइनस 19x. फिर 8x स्क्वेयर ओवर x हमारे पास बना 8x. तो नेक्स्ट टर्म आएगी प्लस 8x. अब 8x को x माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x स्क्वेयर माइनस 16x. फिर से सब्ट्रैक्ट करिए माइनस 3x प्लस 6. अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर हम माइनस 3x को x से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास -3 बचेगा. अब -3 को x माइनस 2 से मल्टीप्लाई करा -3x प्लस 6. अगेन सब्ट्रैक्ट, तो ये 0 ही आना चाहिए क्योंकि हमने प्रूव करा था कि x माइनस 2 fx का फैक्टर है. तो देयरफॉर fx को हम लिख सकते हैं x माइनस 2 इंटू 3x स्क्वेयर प्लस 8x माइनस 3.
अब इसको कंप्लीटली फैक्टराइज करने के लिए हमें सेकंड को स्प्लिट करके मिडल टर्म को फैक्टराइज करना पड़ेगा। उसके लिए इसको हम लिख सकते हैं, देखो 3 इंटू -3 इज -9। वी नीड टू नंबर जिनका सम 8 हो और प्रोडक्ट -9 हो, तो वो +9 -1 हम लिख सकते हैं। इट इज +9x -x -3। तो अब यहां से अगर आप फर्स्ट सेकंड में से 3x कॉमन ले लो, ये x + 3, थर्ड फोर्थ में से -1 कॉमन आ गया, x + 3, तो ये बन गया x - 2, x + 3, 3x - 1। तो दिस इज द कंप्लीट फैक्टराइजेशन ऑफ fx, विच इज complete factorization of fx. So in this way you can factorize the given cubic expression or cubic polynomial in x or any variable. So I hope this AV will help you to solve the similar kind of problem. Thank you very much for watching this AV.